Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with calculation of empirical formulas. And before going ahead with empirical formula, how can I calculate the percentage of any element within the compound? Okay. Suppose a formula given which contains only carbon and hydrogen. If anybody is asked what is the percentage of carbon here, you need to first find out the molecular mass. Molecular mass 6, carbon 12 plus 6 hydrogen. Hydrogen have atomic mass 1. And total becomes 78. Now percentage of carbon, mass of carbon in compound, mass of carbon in compound into 100 divided by molecular mass. Okay, here mass is 72, carbon is 72, so 72 into 100 and divided by 78 is the percentage of carbon. And percentage of hydrogen, same, mass of hydrogen, that 6 into 100 divided by 78. If you cancel it, 6 1 is 6, 6 3 is 18, and divide 100 by 13, 7.78, 777 or 78, and it becomes 92.32%. Okay. In any compound, you can find out percentage of element like this way. Okay, suppose I have another compound like sodium sulfate, hydrated sodium sulfate. It is here water of crystallization, means water molecules which held salt within the crystal. And if anyone asked percentage of sodium or percentage of sulfur or percentage of oxygen or percentage of water of crystallization, you first need to calculate the molecular mass. Molecular mass 23 into 1 because 1 sodium, 32 into 1 because 1 sulfur, 16 into 4 because 4 oxygen, and 7 further within bracket 2 into 1 plus 16 is the molecular mass of hydrated sodium sulfate. Okay, and if you need to calculate the percentage, use same formula like percentage of sodium, mass of sodium within the compound, that's 23 into 100 divided by total molar mass. Okay, and if this percentage given, you can very easily calculate empirical formula, and if any hints given for molecular mass, you may also calculate molecular formula. Means परसेंटेज यदि गिवन है तो इसके हेल्प से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और यदि कोई हिंट्स दिया है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए या फिर मॉलिक्यूलर मास दे दिया है तो वहाँ से आप आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है, बट बिफोर गोइंग अहेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला आई नीड टू टेल you what is chemical formula. Chemical formula is nothing but
symbolic representation of compound. Symbolic representation of compound is known as chemical formula. ओके, और कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना रहेगा उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं. तो केमिकल फॉर्मूला मेरा 3 टाइप्स का होता है. केमिकल फॉर्मूला आर ऑफ 3 टाइप्स. chemical formula are of 3 types. One is molecular formula. Second is empirical formula. And third is structural formula. Okay. Molecular formula. In molecular formula, exact number of atom given which is found in one molecule means exact number of atom found within a compound given, then it is molecular. If ratio of number of atoms are given, then it is empirical. Ratio of number of atom given. Ratio of number of atom given, then it is empirical formula. Okay. And if position of atom represented by bond line, is shown, then it is called structural formula. Means एटम का पोजीशन दिखाया जा रहा है. पोजीशन ऑफ एटम shown by bond line. ओके. अब मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं. लेट अ कंपाउंड having 4 carbon and 10 hydrogen. ओके. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10. empirical formula, we need to find out ratio. 4:10 कैंसिल होकर कितना आएगा 2:5 और यह हो जाएगा C2H5. C2H5 इज empirical formula. और इसका यदि अरेंजमेंट मैं शो करूं C C C C H H H H H H H, then it is called structural formula. Okay. Position of atom by bond line, structural formula. Ratio of atom empirical. Exact number of atom molecular. Okay. And if you have percentage of element within the compound, then you easily find out empirical formula. So let us find the percentage of carbon and hydrogen in this compound. So first of all we need to find out molecular mass. Here molar mass क्या हो जाएगा 4 into 12 plus 10 into 1. It becomes 58. Now percentage of carbon 48 into 100 divided by 58. Percentage of hydrogen 10 into 100 divided by 58. It is the percentage of carbon and hydrogen. अब हम लोग इसी परसेंटेज से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे
और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो सम्स मैं एक यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि परसेंटेज यही है, लेकिन वेपर डेंसिटी इसका 29 है। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 29, परसेंटेज से हम लोग सिर्फ इंपीरिकल निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए या फिर कोई ऐसा हिंट्स चाहिए जिससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाए। परसेंटेज से ओनली इंपीरिकल। तो परसेंटेज गिवन, परसेंटेज ऑफ कार्बन 82.75 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 17.25 एंड वेपर डेंसिटी is 29. Find out empirical and molecular formula. तो empirical formula निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको जस्ट एक टेबल का फॉर्मेशन करना है, जिसमें फर्स्ट में लिखेंगे एलिमेंट, सेकंड में लिखेंगे परसेंटेज, थर्ड में लिखेंगे एटॉमिक मास, फोर्थ में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, और फिफ्थ में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, तो मेरे पास दो एलिमेंट है यहाँ पर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 82.75 and percentage of hydrogen is 17.25. Atomic mass कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। अब मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, इट्स बिकम्स 17.25। यहाँ देखता हूँ क्या होगा, 82.75 डिवाइड बाई 12, 6 जा 72, 107, 96, 115, 9 जा 108, 7, 5 जा, यानी अप्रॉक्सीमेटली मेरा ये आ रहा है 6.9। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस नंबर को पिक करेंगे, स्मॉलेस्ट को, और उसी से सब में डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। स्मॉलेस्ट है 6.9, 6.9 डिवाइड बाई 6.9 इट बिकम्स 1। 17.25 डिवाइड बाई 6.9, तो कितना आएगा इसको जरा देखिए तो, 17.25 डिवाइड बाई 6.9, अप्रॉक्सीमेटली आई होप 2.5 approximately it may be 2.5। बट मेरे पास जो रेशियो है वो होल नंबर का रेशियो है। होल नंबर का रेशियो, यदि इसको होल नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 2.5, तो प्रत्येक यदि मैं ट्वाइस करूं तो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, क्योंकि यदि फ्रैक्शन में होगा तो फिर डॉल्टन साहब गलत हो जाएंगे। डॉल्टन ने क्या कहा था, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसको होल नंबर के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 1:2.5 है, इसको यदि होल नंबर के टर्म में हम लोग ले जाएंगे 1:2.5, 1:25/10, 1 × 10/25 कैंसिल किया तो आया 2/5 और 2:5।
इसके बाद हम लोग डायरेक्ट हेडिंग देंगे देयर फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी नंबर है उस नंबर को मेंशन कर देंगे। कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन है 5, C2H5। अब यदि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास के लिए हिंट्स दिया हुआ वेपर डेंसिटी। तो वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। 2 into 29 it becomes 58। और मुझे n फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। n फैक्टर ये होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास here 58, इंपीरिकल फॉर्मूला मास इसका मास कार्बन 12, 2 into 12 plus 5 into 1 becomes 29। तो ये आया आपका 2। अब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअली में होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू n फैक्टर। इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू n। इंपीरिकल फॉर्मूला C2H5 और n है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C4H10। यही कंपाउंड था जो लोग हम लोग इनिशियली लिए थे, ब्यूटेन, और या इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास यदि परसेंटेज रहे और हिंट्स रहे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का, तो हम इंपीरिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है। कहिए आप लोग। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक से लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट समझने के लिए सपोज आप खाना खा रहे हैं और आइटम है आपका मटन और रोटी। सपोज रोटी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मटन थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे? जब तक मटन चलेगा तब तक तो खाओगे, उसके बाद क्या? स्टॉप। मतलब आपका खाना कौन कंट्रोल कर रहा है? जो लेसर अमाउंट में है। जो लेसर अमाउंट में है वही कंट्रोल कर रहा है। तो सेम वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जरूरी नहीं होती है कि हम जैसा बैलेंस इक्वेशन कह रहा है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग्स में रिएक्टेंट लें। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस इक्वेशन कहता है 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो जाकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, सॉरी कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो, दैट्स मस्ट बी 3:8 रेशियो होना चाहिए। सपोज मेरे पास कार्बन हो गया 24 ग्राम और ऑक्सीजन मेरे पास है सिर्फ 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन तो कम हो गया। तो रिएक्शन तब तक होगा जब तक सारा ऑक्सीजन कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीटली यूज्ड ना हो जाए, और जैसे ही कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप। CO2 तो बनेगा, लेकिन CO2 के अमाउंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो लेसर अमाउंट में है। तो जो लेसर अमाउंट में है और प्रोडक्ट के क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट which is found which is found in the reactant 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 which is found in the reac
in lesser proportion and controls the amount of product known as limiting value of reactants. सेम उसी टाइप में जैसे हमने कहा रोटी बहुत ज्यादा है मटन कम है, तो आपके खाना को कंट्रोल कौन कर रहा है? मटन। जब तक मटन है तब तक खाएं, उसके बाद स्टॉप। मटन यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इन लेसर प्रपोर्शन। तो बैलेंस इक्वेशन से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। यानी एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि इस अमाउंट में यह रिएक्टेंट है, इस अमाउंट में यह रिएक्टेंट, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पकड़ने के बाद ही हम प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है वह बता सकते हैं। जब तक सपोज हमें पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 12 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 24 क्या देगा? 88 ग्राम देगा यदि यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही कंप्लीटली फिनिश होगा रिएक्शन वहीं पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जो पहले कंज्यूम हो, जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे, वही है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। क्योंकि लेस अमाउंट में तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा तो प्रोडक्ट के अमाउंट को भी वो कंट्रोल करेगा। ओके,